ये लाइव क्लास स्टार्ट करने के लिए that's what we are proceeding here. Good morning to all of you. Good morning. Good morning. Good morning to all of you. Good morning. Good morning to all of you. जी Good morning to all of you. Hi to all of you. Hi to all of you. Hi to all of you. ओके मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल। बस स्टार्ट कर रहे हैं। एरर का क्लास हम लोगों ने छोड़ा था, तो बस उसी को हम लोग आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं। Our topic will be error and its types. We'll be discussing in today's lecture error and its types. Is it clear? This topic is very important for the examination point of view because a 5 mark question is damn sure from this topic. 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो उस टॉपिक से बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में आ जाता है और ये किसी भी सब्जेक्ट से आ जाता है। टॉपिक भले ही इस सब्जेक्ट में लिखा गया है, लेकिन ये 5 मार्क का जो क्वेश्चन है वो किसी भी सब्जेक्ट से आ जाता है नहीं। तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अ 5 मार्क क्वेश्चन दैट इज डैम श्योर। इज इट क्लियर? सो आई एम प्रोसीडिंग। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ दिस एरर। फॉर एग्जांपल आर डिजायर्ड, जो हम चाह रहे थे, आर मतलब रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू जो हम डिजायर कर रहे थे, फॉर एग्जांपल इट इज 100 ओम। आर मेजर्ड that is equal to 100.2 ohm. Is it clear or not? So what is the deviation? R deviation, जितना deviation मतलब जो चाहिए था वो नहीं मिला। क्लियर है यहाँ पर बात समझ? तो R measured minus it is nothing but simply R desired. Is it clear or not? So measured is 100.2 ohm minus it is nothing but simply 100 ohm. Is it clear or not? So that is nothing but simply this is 0.2 ohm. So original value required was 100, measured value was like this. The deviated value is nothing but simply called as error, and this 0.2 ohm is deviated from any value or 100 ohm. This is deviation from 100 ohm. Is it clear or not? So error can be defined as the deviated value from the actual desired value. Is it clear? So error can be defined as it is nothing but simply deviation from the desired value. Clear है? जो चाह रहे थे उससे जो deviation आया, that is nothing but simply called as an error. Is it clear or not? So error, I hope you got the deviation, got the definition. That is nothing but simply a deviation from the original value or the desired value. That is nothing but simply called as an error. Is it clear? आगे चलते हैं।
and for example this is 100.2 ohm minus it is nothing but 100, this is nothing but 0.2, this is nothing but simply change between the two, is it 100 तो इसमें भी है 100 इसमें भी है, फर्क सिर्फ कितने का है 0.2 का फर्क है. So I am writing this is nothing but simply called as delta R. Is it clear or not? This is nothing but simply called as an error. Error is nothing but simply change or deviation. This is nothing but simply called as an error. And this is a unit wala quantity or unitless quantity, unit quantity. This is also in ohm. This is also in ohm. Ohm minus ohm, result will be ohm. Such an error is called as absolute error. Is it clear or not? So in examination, if they ask about error, if they ask about error, you have to check the four options whether they are present in terms of unit or unitless. If it is in unit, then 100% guarantee that it will be which kind of error? बताइए जरा सा. Absolute error. Is it clear or not? So hope you got the idea, the definition of absolute error. Absolute error, unit quantity. Is it clear or not? It is not like that key it is without unit or unitless. Is it clear? It is the unit quantity. That is nothing but simply called as an absolute error. Is it clear or not? आगे चलते हैं. Now I am proceeding further. So delta R is 0.2 ohm. This delta R is 0.2 ohm. Is it clear or not? Now this delta R has been calculated with respect to general or with respect to 100 ohm. बताइए जरा सा. with respect to 100 ohm, तो ये जो 0.2 ohm है किसकी तुलना में डेविएटेड है? 100 की तुलना में डेविएटेड है. इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, dy by dx का मतलब होता क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ i with respect to x. इज इट क्लियर और नॉट? तो डेल्टा r is also calculated with respect to r. is it clear or not? तो इसका मतलब delta r is calculated in relation with r. is it clear or not? तो differentiation of change in y with respect to change in x. is it clear or not? तो with respect to का मतलब जो है डिवाइड बाई होता है, तो विद रेस्पेक्ट टू का मतलब डिवाइड बाई है. उल्टा समझिए तो डेल्टा आर हैज बीन कैलकुलेटेड इन रिलेशन विद आर. तो डेल्टा आर अपॉन आर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रिलेशन एरर और समटाइम्स कॉल्ड एज रिलेटिव एरर. y with respect dy by dx का मतलब क्या है? डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. तो या with relative to x. तो delta r is the change has been calculated with relative to r. Such an error is called as relative error. Is it clear or not? This is called as a relative error. Delta r is also in ohm. R is also in ohm. Ohm will get cancelled out. So relative error is a unitless quantity. Is it clear or not? Unitless quantity. Hope you are getting the idea. Is it clear or not? तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी. रिलेटिव एरर और समथिंग लाइक दैट. इज इट क्लियर और नॉट? So relative error we have calculated, very simple part. Now I am proceeding with this further. If you want to calculate percentage error, for example 70 divided by 100, you have got 100 mark and you have got 70 marks out of 100. If you want to calculate percentage, then multiply this by 100, then it will be percentage. So similarly delta r has been calculated with respect to r. If you want to calculate in terms of percentage, multiply this by 100. This is nothing but simply called as percentage error. So relative error is almost percentage error. Is it clear or not? So this is what the definition of percentage error. Hope you got the idea. Hope you got the classification. So I'm proceeding further. Now if you see this, for example, x is equal to 4 plus minus 2%, y is equal to 3 plus minus this is nothing but 1%. Is it clear or not? Say for example, different here a lot of errors are there. That's what I am explaining with an example. So please try to understand. If you try to understand, then things are too easy. Is it clear or not? So I'm starting. For example, z is equal to, it is nothing but simply x plus y. Sorry, x dot y. Is it clear or not? Say for example, z is nothing but simply x dot y. Calculate the value of error in z. Is it clear or not? तो x जो है वैल्यू तो 4 है, प्लस माइनस 2% का एरर हो सकता है. y जो है 3 है, प्लस माइनस 1% का एरर हो सकता है. तो z अगर ये है तो z में एरर कितना होगा ये बताना है. क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? या तो z की वैल्यू कैलकुलेट करो.
जब x और y में एरर होगा तो z में भी एरर होगा, तो कितना एरर होगा, दैट यू आर सपोज टू कैलकुलेट। इज इट क्लियर और नॉट? सो आई एम प्रोसीडिंग, देखिए जरा, जो भी फंक्शन दिया हुआ है ना आपको, z इज इक्वल टू x डॉट y और समथिंग लाइक दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ प्लस माइनस। इज इट क्लियर और नॉट? ये तो प्रोडक्ट में है, ट्राई टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ प्लस एंड माइनस। इज इट क्लियर और नॉट? तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिए जरा सा, z इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई, प्लस माइनस में लाने के लिए एक ही तरीका होता है, लॉग में लिखें, लॉग z इज इक्वल टू लॉग x डॉट इट इज नथिंग बट y, दैट इज इक्वल टू लॉग x प्लस इट इज नथिंग बट सिंपली लॉग y, लॉग a डॉट b दैट इज इक्वल टू लॉग a प्लस b, so log of z. Is it clear or not? So further what I'm going to do is differentiate z with respect to either x or y. Is it clear or not? तो z को आप चाहें तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर लें, चाहे तो आप y के रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर लें, इट्स अप टू। log z का डेरिवेटिव 1 बाई z, z का डेरिवेटिव dz अपॉन dx, मैं x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर लेता हूँ। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? दैट इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x तो 1 हो जाएगा, आगे चलते हैं, प्लस log y का डेरिवेटिव 1 बाई y, y का डेरिवेटिव dy अपॉन इट इज नथिंग बट सिंपली dx। होप यू आर गेटिंग द आइडिया। इज इट क्लियर और नॉट? So the things are too easy. 1 by z dz upon it is nothing but simply dx, that is equal to 1 by x, that plus it is nothing but 1 by y dy upon it is nothing but simply dx. Taking these dx, cross multiply here, cross multiply here, so dz upon it is nothing but simply z, that is equal to dx upon it is nothing but simply x plus dy upon it is nothing but simply y, dx will get cancel out. Is it clear or not? So this is what the value. If you want to write in terms of error or change, delta z upon it is nothing but z, that is equal to delta x upon it is nothing but x plus delta y upon it is nothing but simply y. This is what the value what we have calculated. So this is what the representation. Is it clear or not? So we have the value. If you try to see the understand, x is equal to 4 plus minus 2 percentage, plus minus 2 percentage. We have seen percentage error, that is nothing but simply delta r by r. Is it clear or not? Multiply by, that is nothing but simply 100 per 100, that is nothing but simply percentage. Is it clear or not? अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो, अच्छा, परसेंटेज में लिखने के लिए डेल्टा आर बाई आर होना होगा, तो ये 2% जो एरर है एक्स में है, तो इसीलिए मैं इसको डेल्टा एक्स बाई एक्स बोल देता हूँ, दैट इज इक्वल टू 2%। इज इट क्लियर? और प्लस माइनस में भी लिख सकते हैं आप, तो दिस इज व्हाट द नोटेशन, प्लस माइनस। अच्छा, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तब परसेंटेज आ जाता है, परसेंटेज में ऑलरेडी है तो परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो परसेंटेज हट जाएगा, तो प्लस माइनस 0.02, दैट इज व्हाट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन इट इज नथिंग बट सिंपली एक्स। सिमिलरली डेल्टा वाई बाई वाई, वाई में डेल्टा y अपॉन इट इज नथिंग बट y प्लस माइनस इट इज नथिंग बट 1%, तो प्लस माइनस परसेंटेज अगर हटाना है तो 1 बाई 100 कर दीजिए, दैट इज प्लस माइनस 0.01। इज इट क्लियर और नॉट? अब वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वी आर सपोज टू कैलकुलेट डेल्टा z बाई z, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.02 प्लस, और यहाँ पर डेल्टा y बाई y की वैल्यू है प्लस माइनस इट इज नथिंग बट सिंपली 0.01। These all are the values what I'm supposed to calculate over here. Is it clear or not? So I hope you are getting the idea. This is for the value how to calculate. ठीक है, एक्चुअल में अगर हम चाहें तो रात को 9 बजे भी क्लास ले सकते हैं, उसमें जो है काफ़ी क्राउड आता है, लेकिन वो बहुत डिस्टर्ब टाइम होता है, सही सा नहीं लगता है। सुबह माइंड फ्रेश होता है, जो लोग पढ़ने वाले होते हैं वो अपने आप जो है टाइमली आ जाते हैं पढ़ने के लिए और वो कर भी लेते हैं। आप जिनको एंजॉय, कोई भी प्लेटफॉर्म अगर हम यूज करते हैं तो उसको एंजॉयमेंट के लिए नहीं यूज करना है, समझ में आएगा? तो देखिए जरा सा, अब यहाँ भी प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस, कॉम्बिनेशन प्लस प्लस का बनेगा, प्लस माइनस का बनेगा, माइनस प्लस का बनेगा, माइनस माइनस का कॉम्बिनेशन बनेगा, इस तरह तो 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? सो आई एम प्रोसीडिंग, ऑल 4 कॉम्बिनेशन आई एम कंसिडरिंग, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस है, तो प्लस 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 0.02 प्लस, और यहाँ भी प्लस, तो प्लस 0.01, तो ये हो गया प्लस 0.03। इज इट क्लियर? फर्स्ट कॉम्बिनेशन। नाउ सेकंड कॉम्बिनेशन, प्लस माइनस, प्लस 0.02 प्लस माइनस वैल्यू आई एम कंसिडरिंग,
माइनस 0.01, तो वो सब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो लेकिन रिजल्ट प्लस में आएगा, प्लस 0.01। आगे चलते हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन माइनस प्लस, माइनस 0.02 प्लस, और ये वाला प्लस लेते हैं 0.01, तो प्लस 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 होगा, ये आ जाएगा रिजल्ट माइनस 0.01। लास्ट फोर्थ कॉम्बिनेशन माइनस माइनस, माइनस 0.02 प्लस माइनस 0.01, तो रिजल्ट आया माइनस 0.03। दिस इज व्हाट द फोर कॉम्बिनेशंस व्हाट आई हैव कैलकुलेटेड। सी डिफरेंट values are there based on plus minus minus plus minus 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 plus plus like that, but what we have to consider, these two values we have to consider, is it clear or not, because this is the maximum value, no value is greater than this, and this is the minimum value and no value is lesser than this, is it clear or not। ये सबसे बड़ा और छोटा वैल्यू है, वही दो वैल्यू हम लोगों को जो है कंसीडर करनी है, बिकॉज जो सबसे बड़ा है वही उससे बड़ा और कोई वैल्यू नहीं है, और जो सबसे छोटा है उससे छोटी वैल्यू कोई नहीं है। तो इसका मतलब कैन आई कॉल these all are the two limits, no value is greater than plus 0.03 and no value is lesser than minus 0.03. So these two values are called as limits. Hence, this error is nothing but simply called as limiting error. Is it clear or not? Limiting error. Is it clear? So in examination, you have to focus mainly on the limiting error. No other value you have to consider in between value. जैसा ये सारी values आ रही हैं, you are not supposed to calculate these values. Is it clear or not? You have to calculate only लिमिटिंग एरर। इज इट क्लियर और नॉट, लिमिट्स ऑफ द एरर। इज इट क्लियर? तो हम लोगों को बताना था z इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई। तो x की वैल्यू जरा सा देखिए, आपके पास क्या था, x की वैल्यू ये थी 4 ± 2%, 4 ± 2%, y इज इक्वल टू 3 ± 1%। तो z जो है x डॉट y तो है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, 12, 4 3 12, लेकिन एरर भी है इसमें, ±3% का एरर है, वो आप लगा देंगे। इज इट क्लियर और नॉट? ±0.03 है, परसेंटेज में लाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करिए तो ±3% हो जाएगा, परसेंटेज हटाना हो तो डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, 0.03 आ जाएगा। बात समझ में आया नहीं समझ में आया? So like this you have to calculate the limiting error. Hope you are getting the idea, the meaning of the limiting error. What is the meaning of limiting error? The two limits, maxima and the minima, extreme values you have to consider, and those will define the meaning of the limiting error. Is it clear or not? Limiting error, hope you are getting the idea. Is it clear? This was the value, hope you are getting the idea, the meaning of the limiting error. Is it clear or not? तो चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखिए जरा सा, for example, if the same value z is equal to x by y is there, is it clear or not? You have to calculate x और y की वैल्यू वही है जो पिछले वाले क्वेश्चन में थी, and you are supposed to calculate the limiting error for this। तो पहले z की वैल्यू निकालेंगे, विद एरर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए जरा सा, सबसे पहले प्लस माइनस में कन्वर्ट करना है, ये तो डिवाइड में नेचुरल लॉग ऑफ z, the natural log of x by it is nothing but y। Is it clear? Or natural log of z, that is equal to natural log of x minus it is nothing but the natural log of y। We have to derivate the values with respect to either x or y। 1 by z, it is nothing but dz upon it is nothing but dx, that is equal to 1 by x, dx का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, minus 1 by y, this is nothing but simply dy upon it is nothing but dx। Take this dx, cross multiply here, cross multiply here, so dz upon it is nothing but simply z, that is equal to dx upon it is nothing but x minus dy upon it is nothing but y। किस तरह से, ये देखिए जरा सा, जब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो dx by x आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो dx dx कैंसिल हो जाएगा, तो dy by y बचेगा। आगे चलते हैं, एरर के टर्म्स में लिखना चाहें तो डेल्टा z by z, दैट इज इक्वल टू डेल्टा x by x माइनस इट इज नथिंग बट डेल्टा y अपॉन इट इज नथिंग बट सिंपल y। इज इट क्लियर और नॉट? हमारे पास वही सारी वैल्यू है, प्लस माइनस 0.02 पर 02 माइनस प्लस माइनस 0.01। अब जो है चार कॉम्बिनेशन फिर से बनाने होंगे, तो वन बाय वन वी आर डेवलपिंग द ऑल फोर कॉम्बिनेशन सो दैट यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड। फर्स्ट कॉम्बिनेशन प्लस 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 0.02, बट बीच में साइन माइनस का है,
plus 0.01 plus minus minus, this result is minus plus 0.01. Is it clear or not? Second combination, प्लस एंड माइनस, तो प्लस 0.02 बीच में माइनस, माइनस 0.01, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 0.03। आगे चलते हैं, थर्ड माइनस प्लस, माइनस 0.02 माइनस, और ये वाला प्लस लेते हैं, प्लस 0.01। इज इट क्लियर? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 0.03 आ जाएगा। फोर्थ माइनस माइनस लेते हैं, दोनों वैल्यू माइनस और बीच की साइन तो माइनस है ही है, माइनस 0.01 आ जाएगा। इज इट क्लियर? और अब एक चीज देखिए जरा सा, पिछले वाले क्वेश्चन में भी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू प्लस 0.03 थी, मिनिमम वैल्यू माइनस 0.03 थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, एरर कैलकुलेट करते वक्त, एरर कैलकुलेट करते वक्त बीच का साइन प्लस हो चाहे बीच का साइन माइनस हो, एरर कैलकुलेट, देखिए पिछले वाले में डेल्टा वाई बाई वाई था प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स था, आज बस बीच में साइन क्या है, माइनस है, लेकिन लिमिट्स जो है उतनी ही है। क्लियर? तो इसका मतलब बीच का साइन प्लस हो चाहे माइनस हो, एरर कैलकुलेट करते हुए वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ पर? तो इसका मतलब वंस वी आर कैलकुलेटिंग डेल्टा जेड बाई जेड, डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई भी अगर कर दें तो भी आंसर सेम है, बीच का साइन प्लस हो चाहे बीच का साइन माइनस हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो व्हाट आई एम कंक्लूडिंग फाइनली इज डेल्टा z by z that is equal to डेल्टा x by x, अगर माइनस डेल्टा y by y है तो रिप्लेस दिस माइनस साइन विद द प्लस साइन, बिकॉज माय फाइनल लिमिटिंग एरर will not be going to disturb. Is it clear or not? So hope you are getting the idea. Is it clear? So that's what I'm considering. I'm making you to understand the definition of limiting error. Once you're calculating the error, if you're calculating the error, if you're calculating error, what you have to do is, you need to basically, what you have to do is replace all the minus sign with the plus sign only in the error expression, no other expression. Is it clear or not? तो एरर कैलकुलेट करते वक्त सारे माइनस साइन को रिप्लेस कर देना होगा, किससे बताइए जरा सा, प्लस साइन से। उम्मीद करता हूँ लिमिटिंग एरर का केस आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? बात समझ में आई? अच्छा, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाई टी स्क्वायर, फॉर एग्जांपल इट इज लाइक दैट। तो करना क्या है, देखिए जरा सा, लॉग ले लेंगे, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई क्यूब माइनस लॉग टी स्क्वायर। अच्छा, 2 3 पावर जो है सामने आ जाएगा, अब क्या करना है, किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर देना, तो आप जानते ही हैं। तो फाइनल क्या आएगा, डी जेड बाई जेड is equal to 2 dx upon it is nothing but x plus 3 dy upon y minus 2 dt upon t. This is what the value. अच्छा, और अच्छे से लिखें, इसी को मैं यहाँ लिखता हूँ, डेल्टा z by z that is equal to 2 डेल्टा x by x plus 3 डेल्टा y divided by y minus 2 डेल्टा t divided by t. आपको मालूम है एरर निकालते वक्त माइनस साइन का कोई कीमत नहीं है, convert this in terms of plus, directly you can write like that. Is it clear or not? This is what the definition of the limiting error. Hope you got the idea. Clear है यहाँ पर बात समझ में? अच्छा, सुबह क्लास लेने का एक रीजन ये भी है कि दिन में टाइम नहीं बचता है। टाइम इसलिए नहीं बचता है क्योंकि हम लोग जैसे रात में 9 बजे डिसाइड किए थे, उस वक्त क्लास रहती है दूसरी, समझ में है आपको, दूसरा क्लास रहता है तो वो लेना बहुत मुश्किल होता है, समझे, इसलिए। और ये टाइम अच्छा है, दिमाग को शांत वाला टाइम भी है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा लिमिटिंग एरर क्या होता है। अब इस पे जो है एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आए हैं, एग्जामिनेशन में जो न्यूमेरिकल आए हैं, बेसिकली हम लोग उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उस तरह का क्वेश्चन हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, कि जिससे जो है आपका दिमाग जो है सेट हो जाएगी, किस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपके पास आता है, और फिर जो है आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, किस तरह से वो चीज़ें क्लियर होती हैं। दैट विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास टुमारो सेम टाइम, विल मीट एट द 5 AM। और कल की क्लास जो है थोड़ी लंबी हम लोग करेंगे, 40 to 45 मिनट्स की हम लोग क्लास करेंगे, जिससे आप लोग जो है अच्छी, काफ़ी दिन बाद क्लास था, लेकिन उम्मीद करता हूँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो
राइट टाइम विल बी मीटिंग एट 5, क्योंकि शाम को दूसरे सब्जेक्ट का और क्लास भी रहता है ना, तो रेगुलर क्लास जो हम लोगों का चलता है वो रहता है, इसलिए जो है टाइम कम मिलता है, समझ में आया ना। तो मॉर्निंग हम लोग यूट्यूब लाइव को मॉर्निंग ही करेंगे, और जो ऐप वाला है वो रात के 9 बजे जैसा रहता है वैसे ही रहेगा, ठीक। तो आज सेम टाइम पे आपके पास क्लास है रात में 9 बजे ऐप पर, आप लोग उसको करिए, और मॉर्निंग में कल भी एरर की क्लास रहेगी सेम टाइम। सो होप यू गॉट द आइडिया, होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ absolute error, hope you got the meaning of limiting error, hope you got the meaning of relative error, hope you got the meaning of percentage error. Is it these four errors what I have concluded? And finally, ultimately what you have to consider is you have to calculate only limiting error in the examination point of view. अब ये देखना होगा, अब और भी टाइप है एरर के, जैसा आरएमएस एरर है, रूट मीन स्क्वायर जो आप 12th क्लास से पढ़ते आते हैं, एवरेज एरर है। अभी एग्जामिनेशन में, अच्छा एब्सोल्यूट एरर कैसे पहचानते हैं ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट एरर, अगर एरर में यूनिट लगा हुआ है तो वो एब्सोल्यूट एरर है। रिलेटिव एरर कैसे पहचानते हैं कि उसमें यूनिट लेस होगा, खत्म हो गया। अच्छा परसेंटेज एरर कैसे पहचानते हैं, उसी रिलेटिव एरर को परसेंटेज एरर परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया होगा, परसेंटेज एरर हो गया। अच्छा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एब्सोल्यूट एरर ही कैलकुलेट करना है और कोई एरर नहीं कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब एब्सोल्यूट एरर तो कैलकुलेट करना है, लेकिन उसको एवरेज तरीके से निकाल के पूरा 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 अपलोड होगा मैडम, और कल भी क्लास होगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आज ही होगा, कल भी क्लास होगा। ये एरर जब तक कंप्लीट नहीं हुआ तब तक ये क्लास ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो डोंट बॉदर अबाउट दिस, सेम टाइम टुमारो वी विल मीट, है ना। तो ये पार्ट आपको, इतना उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अच्छा अब लिमिटिंग एरर का मतलब तो मैक्सिमम मिनिमा लिमिट हो गया, ये वाली एरर है। अब मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लिमिट आप निकालोगे, लिमिट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एवरेज करके भी आप लिमिट निकाल सकते हैं, आरएमएस के जरिए से भी निकाल सकते हैं, कैसे भी आप लिमिट निकाल सकते हैं। अब ये आपका कमाल होगा कि एग्जाम में आप आरएमएस निकालते हैं या एवरेज निकालते हैं, वो उसका एक शॉर्टकट, एक पहचानने का तरीका मैं बताता हूँ। जैसा ब्रैग्स इक्वेशन जो होता है, 2d sin theta that is equal to n lambda or something n minus 1 lambda something like that, वो मैक्सिमम मिनिमम पे आता है। बोला है थीटा में एरर निकाल के बताओ, बोला है थीटा में एरर निकाल। अब ये नहीं बोला है कि आप रिलेटिव एरर निकालिए, ये नहीं बोला है कि आप जो है परसेंटेज एरर निकालिए, ये नहीं बोला है कि एवरेज एरर निकालिए, ये नहीं बोला है कि अनसर्टेनिटी निकालिए। तो आपको कैसे पहचानना है वो मैं बताता हूँ। आप लोग 12th क्लास में पढ़ते होंगे v इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा, और आप वी आर एम एस निकालते होंगे, दैट इज इक्वल टू वी एम बाई रूट टू, और वी एवरेज निकालते होंगे 2 Vm/π। अगर आप 12th क्लास पढ़े होंगे तो रेक्टिफायर वगैरह जब टीचर पढ़ाए हो तो ये पढ़ाएगा, मतलब साइन कोसाइन में हमेशा आरएमएस निकलता है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ, एवरेज नहीं निकलता। इज इट क्लियर? एवरेज जबरदस्ती निकालते हैं अलग बात है, लेकिन साइनोसॉइडल फंक्शन में, अल्टरनेटिंग फंक्शन में, एसी में हमेशा आरएमएस निकलता है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो ब्रैग्स इक्वेशन में ये क्वेश्चन नेट एग्जामिनेशन में आ चुका है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, साइन कोसाइन फंक्शन जब भी आएगा तो आप सीधे किसके पास जाना बताइए जरा सा, आरएमएस के पास जाना। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट क्लास हम लोग जो देखेंगे वो आरएमएस एरर ही देखेंगे। क्लियर है यहाँ पर? तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझ आया होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउ व्हेन वी हैव टू यूज द आरएमएस एरर। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? अच्छा दूसरी बात, एक टॉपिक हमारे सिलेबस में है, दैट इज नथिंग बट अनसर्टेनिटी। ये भी क्वेश्चन अनसर्टेनिटी, uncertain, I'm not certain, I'm not sure, is it clear or not? I'm not sure। तो एग्जाम में अनसर्टेनिटी को भी एरर बोलता है। क्लियर है यहाँ पर? अब अनसर्टेनिटी को भी अगर एरर ही बोलता है तो फिर ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये आरएमएस एरर है या एवरेज एरर है या लिमिटिंग एरर है, कौन सा एरर है पता नहीं, है ना। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है, देखिए जरा सा। z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई था, ऐसे समझिए जरा सा। x में कुछ एरर है, y में कुछ। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2%, y इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1%, से फॉर एग्जाम्पल। इज इट क्लियर? तो x प्लस वाई करना है, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस 2%,
plus 3 plus minus 1%. Say for example, it is like that. तो 4 plus 3 तो 7 हो गया, चलो कोई बात नहीं। इसका जो है हम लोग प्लस 4 कॉम्बिनेशन बनाएंगे और ये कर लेंगे। क्लियर है यहाँ पर बात? समझ में आया? नहीं समझ में? छोड़ते हैं इसको। अब फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस 3x प्लस 2y। से फॉर एग्जाम्पल इफ द वैल्यू इज लाइक दैट। अच्छा, x में पिछले वाले केस में, x में पिछले वाले केस में एरर एक ही बार था, क्योंकि x ही एक बार था। y में कितनी बार एरर था? एक ही बार एरर था, कोई बात नहीं। लेकिन आज का केस देखिए, x में x कितनी बार है? 3 बार है, तो उसका एरर भी 3 बार आएगा। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा, y 2 बार है, 2y है, तो एरर भी उसका 2 बार आएगा। अगर किसी फंक्शन को कई बार अगर हम यूज करते हैं और अगर उसमें एरर है, ध्यान से सुनिए जरा, अगर किसी फंक्शन को हम कई बार यूज करते हैं और अगर उसके अंदर एरर है, तो एरर में एरर जुड़ता चला जाएगा। भाई एक्स में एरर कितनी बार जुड़ेगा? 3 बार। वाई में एरर कितनी बार जुड़ेगा? 2 बार। और इन सब में एरर कितनी बार जुड़ेगा? नेट रिजल्ट जुड़ता चला जाएगा। तो इस ऐसे जब एरर में एरर क्यूमुलेटिव एडिशन होता चला जाए, तो उस केस में हम बोल नहीं सकते कि कितना एरर ऐड हुआ है। in such a case we have to use that is nothing but I'm not sure, that is nothing but simply called as answer. in short, आप दिमाग में ध्यान रखिए कि अगर कोई फंक्शन कई बार यूज होता है, कि x कितनी बार यूज हुआ है? 3 बार। y कितनी बार यूज हुआ है? 2 बार। तो ऐसे केस में आप जो है क्या यूज करेंगे बताइए जरा सा? अनसर्टेनिटी। इज इट क्लियर? दिस व्हाट द ट्रिक और द टेक्निक that you have to feel when you have to calculate error, when you have to calculate uncertainty like that. क्लियर है यहाँ पर बात? समझ में आया? तो ऐसे समझ लीजिए, एक्स एक बार था तो एक बार है, तो उसमें 2% का एरर है, चलो कोई बात नहीं। 10 बार यूज कर लो एक्स को। अब पहले में 2% था, दो पर, ये देखो ना, ऐसे समझो, 4 प्लस माइनस 2%, तो 4 में एक बार 2% जोड़ना और 2% घटाना तो चलो समझ में आता है। अगर इसको 100 बार करना पड़े तो एक बार 4 में 2% जोड़ोगे घटाओगे तो कुछ आएगा। अब जो आया है उसमें फिर 2% गड़बड़ करो, फिर जो आया है उसमें और 2%, 100 बार करते रहो, तो इस केस में श्योरिटी नहीं रह जाती आंसर की। इज इट क्लियर और नॉट? तो सच केस यू हैव टू गो फॉर अनसर्टेनिटी। होप यू गॉट द आइडिया, होप यू गॉट द लॉजिक दैट व्हेन वी हैव टू यूज एरर, व्हेन यू हैव टू यूज अनसर्टेनिटी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप यू हैव गॉट द लॉजिक दैट व्हेन यू हैव टू यूज एरर, व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट अनसर्टेन। भले ही एग्जामिनेशन में बोले कि आपको अनसर्टेनिटी एरर यूज करना है, आप समझ जाना कि अगर एक डाटा मल्टीपल टाइम यूज हुआ है तो उस केस में नॉर्मल एरर के पास आपको नहीं जाना है, बल्कि आपको अनसर्टेनिटी के पास जाना है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। सो टुडेज टॉपिक व्हाट वी हैव कंप्लीटेड: डेफिनेशन ऑफ एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, लिमिटिंग एरर, RMS error, overview, and uncertainty. 5 topics we have calculated. Hope you have got the idea. And in the